which is translated as Myrobalan by the first translator. Now, Myrobalan was such a strange word that I had to really try hard to find out the meaning of this, and it is actually defined in a botanical dictionary. It's a Latin term, an astringent fruit of a certain Indian mountain species. Now, probably it's a very accurate, very scientific description of the Indian gooseberry because we use it for pickling, whereas gooseberry in Britain is an edible fruit. It looks different, the leaves are different, and it actually goes into a red fruit. The fruit is eaten. Whereas, the Indian gooseberry, what we call gooseberry, has very different uses and very different taste. So, this translator must have done his research and realized that gooseberry is not the appropriate translation, and so found the word Myrobalan. But does it really add to the richness or the poetic quality of the translation? Is this kind of accuracy necessary at the cost of the poetic beauty? So now that question, again, it's the same thing with cuckoo and quail. The second poet goes for the quail, which is a more accurate description of the Asian cuckoo, but it's also poetically more appealing. So he makes a very careful choice between these terms. And then the first one goes on to say, where is the Myrobalan, child of the hills? Now that child of the hills is a totally his own expression, which is not there in the source text at all. It just says the berry of the hills, sour berry of the hills. There is, once you introduce a word like child, the relationship between the hill and the gooseberry itself gets foregrounded, which is probably not the intention as I understand the poem. And yes, it is possible. Now, if the poet of the source text is deliberately making use of archaic language, then it might become necessary to retain that feel of archaism in the translation as well. But the Vachanakaras of the 12th century broke free from the traditional forms of poetry. They wrote free verse, they wrote in very simple language, the language of the common people. Now, bringing archaisms in probably is not the best thing to do according to me. And then this "Oh brother." Now, if you remember the sound of the Kannada ones, the Kannada version, it's every line ends with "Ettarinda sambandha vayya," "ayya" at the end of every line. Now, this is a very common word used in all the vachanas. In fact, Basavanna has a very famous vachana in which says, if you say "ayya," you will go to heaven. If you say "elavo," you will go to hell. So "ayya" is a more respectful address. "Ayya" can mean master. It can mean, may I get my head of the cat? Okay. It can mean master, it can mean father, or it is a respectful term addressed to any male. Now, this author, H.S. Prakash, chooses to translate it as brother. Now, that leads to a problem because "ayya" is also a reference to God in there here. So, when he says, between us, now who is this us? Ayya and me. Because all this time he's been addressing this to a certain Ayya. When he says between us, Gogeshwara and me, then Ayya becomes God also. So are you referring to him as brother or Lord or master? So that leads to confusion. Now I spoke about the original itself being rather problematic. Now here is an original version of Gogeshwara. Now, Allama Prabhu had his enlightenment according to a poem by a near contemporary of his called Harihara. Allama Prabhu had
his realization. He broke free from Maya near a temple of Gogeshwara. Now, Gogeshwara is another form of Ishvara. And later on, this Gogeshwara, because you have Ga and bottom another Ga. Now, when they wrote on palm leaves, it was not easy to write under a line. It was difficult. So a later copyist left out that Ardhakshar. Thank you, Lakshmi Subramanian Chandrasekhar, for shifting the focus from prose to poetry and dwelling expressly and exactly on the pragmatics of translation. But both the speakers so far had addressed only the pragmatics of translation, mostly as a linguistic problem or even tangentially a cultural problem. But we could perhaps from these things, what they had said, graduate to a kind of conceptual summing up, which we shall be attempting later on. Now the next paper is by R.K. Mobi Singh. आज के इस सभा के सियर पर्सन श्री प्रदीप आचार्य एवं सभा में उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों के सामने एक आलेख प्रस्तुत करना चाहूँगा जिसका नाम है ट्रांसलेशन चैलेंजेस इन मेंटेनिंग द एसेंस ऑफ द ओरिजिन। वैसे मैं ये पूरा लेख न पढ़कर जो जितना मेरा थोड़ा सा अनुभव है मैं आपको व्यक्त करना चाहूँगा। वैसे लगातार 2 दिनों से ट्रांसलेशन के बारे में काफ़ी कुछ सुनते आ रहे हैं। अनुवाद क्या है, अनुवाद की विशेषताएं, अनुवादक की समस्या और मूल को लेकर के काफ़ी कुछ हम सुनते आ रहे हैं। और सुनना ही नहीं, हम इसका प्रैक्टिकल प्रयोग भी कल हमने देखे हैं कि कल बहुत सारे लोगों ने कविता वाचन किए और इनका अनुवाद भी हमने देखे हैं। सबसे पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा। हाल ही में मैंने एक उपन्यास का अनुवाद किया है, सत्य व्यास, जो काफ़ी चर्चित है और युवा लेखक है, जो 2015 का सबसे बेस्ट सेलर है। उनका उपन्यास है बनारस टॉकीज। जब मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा था तो एक जगह कुछ लाइनें जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। प्रेस में आ गए फिर भी मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। मुझे बहुत इस बात का दुख हो रहा था कि मैं इसके साथ न्याय नहीं कर पाया। तो इनके चलते मुझे काफ़ी दिन तक रिलीज रोकना पड़ा कि दिमाग में काफ़ी कुछ सवाल थे कि क्या मैं सचमुच उसको न्याय नहीं दे पा रहा इन्हीं 2-3 लाइनों से। देखिए, मैं एक प्रश्न उठाना चाहूँगा। इसमें शिल्पा शेट्टी अपने प्रेमी को इस तरह पत्र लिख रहे हैं। मेरे बाजीगर, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर इस दिल को पढ़ के देखो। जो कहता है तुम दिल की धड़कन में रहते हो, अब तो मैंने भी मान लिया है कि नाना करते प्यार में हाय कर गई। तुम तो बस यह कह के चले गए कि चुरा के दिल मेरा गुरिया चले। मैं तभी से पागल हुई, दीवानी हुई और उस दिन से तेरी गली में चली। कहीं ऐसा ना हो कि इसी पागलपन में मैं बाराना दे करती गलियों में फिरूं, मेरे प्यार को रुसवा ना कर। तुम्हारी शिल्पा जी। देखिए, ये कुछ लाइनें हैं। जब मैं इसको मणिपुरी, वैसे मैं हिंदी से मणिपुरी भाषा में मैं अनुवाद करता हूँ, तो इन्हीं लाइनों को लेकर मैं काफ़ी दिन विचार विमर्श में पढ़ते रहे हैं कि इसका हम कैसे अनुवाद करें। मैंने इसका शाब्दिक अर्थ या उसकी आंतरिक अर्थ तो हम कर लिए 2 दिन में, 1 दिन में बड़े आसानी से, लेकिन मैं सोच रहा था क्या वो लेखक के प्रति हम न्याय कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने इन्हीं 3-4 लाइनों में जो हिंदी गानों की जो मुखरा, जो बहुत सुंदर, जैसे किताबें बहुत सी पढ़ी होगी,
तुम दिल की धड़कन में रहते हो, नाना करते प्यार हाथ में कर गई। देखिए इनकी जो सौंदर्य जो है वो हम मणिपुरी भाषा में कैसे दिखा पाएंगे, ये हम नहीं दिखा पाएंगे। तो हम इसी बात को लेकर के काफ़ी दिन तक कंफ्यूजन थे। हम सोचते रहे कि हम जब मणिपुरी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लेखक की जो मंतव्य की जो गाना हम दिखा रहे हैं, गाना की मुखरा हम सुना रहे हैं, वो लगभग लुप्त हो जाएंगे। इसी बात को लेकर के हम काफ़ी कंफ्यूजन करते रहे और एंड में जाकर के हमने थोड़ा सा स्वतंत्र लिए और उसको हमने एक और प्रश्न है, जैसे आनंद बख्शी जी का बहुत सुंदर गाना, वैसे आप सब परिचित है, मेरे जीवन साथी प्यार किए जाओ, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी परोसन सत्यम शिवम सुंदर। देखिए ये गाना जब हम ट्रांसलेट करते हैं अपनी भाषा में या अन्य भाषा में, तो देखिए हम अर्थ हम कर लेंगे, लेकिन इसमें जो गीतकार ने फिल्मों के नाम को जो संजो करके एक एक रात दिन मेहनत करके जिन्होंने बहुत खूबसूरत से संजोया है कि आप जानते हैं कि ये लाइनें हिंदी फिल्मों के ही नामों से संजोया गया है। जब वो मणिपुरी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो लुप्त हो जाएंगे, वो अदृश्य हो जाएंगे। हम एक दिन में ट्रांसलेट कर रहे हैं कि वो जब कितने महीनों से वो मेहनत करते ये शायद हो जाएंगे। तो हम पाठकों के सामने या अनुवाद को ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो लेखक के प्रति कितना न्याय करें, स्वतंत्रता ले या न ले। और आप सब जानते हैं कि एक जमाना था कि अनुवाद में स्वतंत्र लिए गए थे तो उनकी भी हत्या हो गई थी। एक कोट है, इंडिया हैज नो मार्टियर्स टू कोज ऑफ ट्रांसलेशन लाइक इटेनी धोले, द 16th century French translator of Plato, executed for the freedom he took with the original text. If we had followed this example, we would have executed the best of our poets. देखिए, और एक तरफ है कि स्वतंत्र लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन एक भाषा से दूसरी भाषा, एक संस्कृत से दूसरी भाषा, जैसे कल एक वक्तव्य ने भी कहा था कि बिहार से लादे हुए आम बनारस पहुंचते पहुंचते कुछ तो खो ही जाते हैं। तो ये प्लस माइनस तो होते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम कितना स्वतंत्र ले। इस बात को लेकर के एक मैं प्रश्न उठाना चाहूँगा। मुस्तफ़ा गाली की एक कोट है, ट्रांसलेशंस आर लाइक वीमेन, ट्रांसलेशंस आर लाइक वीमेन, इफ ब्यूटीफुल नॉट फेथफुल, इफ फेथफुल नॉट ब्यूटीफुल। अनुवाद यदि सुंदर होगा तो मूलनिस नहीं, और मूलनिस होगा तो सुंदर नहीं। तो एक ये भी कहा जाता है कि उमर खयाम की रुबायतों से ज़्यादा सुंदरता इटवर्ड स्विट्जरलैंड का अनुवाद रुबायत ऑफ उमर खयाम 1859 और द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ शकुंतला बाय विलियम जोन्स 1789 को पढ़ते पढ़ते गहरे पागल सा हो गए थे। और अनुवाद जो उन्होंने मूल भी नहीं पढ़ा, सिर्फ अनुवाद पढ़ करके उन्होंने ये लाइनें बताई हैं, wouldst thou the blooms of the early, the fruits of the latter season, wouldst thou what charms and enrapture, what satisfies, nourishes, feeds, wouldst thou heaven and earth in a single name comprehended, name I Shakuntala, thee, and so is everything said. तो अनुवादक के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं कि वो एक भाषा से दूसरी भाषा अनुवाद करते कितने स्वतंत्रता ले, अगर ले तो कहाँ तक। मरमना लमलेन मलायना हाइना रिबा मफमनी सोनरिबा लमदमी। देखिए इस पंक्ति की जो नुआंस है, इसकी सौंदर्य शायद एक भाषा से दूसरी भाषा शायद संभव नहीं है। और इसके अलावा जैसे श्लेष अलंकार हुए, यमक हुए, इसका ट्रांसलेट करना भी बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल क्या, असंभव सा है। देखिए, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानो सुन। यहाँ पानी का जो श्लेषात्मक अर्थ है वो ना तो अंग्रेजी के वातर से हो पाएगा या मणिपुरी के इसिंग से। कनक कनक से 100 गुना मादकता, अधिकाय वह खाए बोराए, नर वह पाए बोराए। यहाँ जो कनक का जो गोल
गोल और मणिपुरी की जो सना है इसका द्विआर्थिक नहीं है, तो इसीलिए कनक कनक की जो एक कनक से जो दो दो अर्थ प्रकट करते हैं वो हम अन्य भाषा में कैसे दिखाएंगे। चलिए हम फुटनोट करके हम दे भी दे, अगर हम नाटक या कहानी में हम उसके नीचे फुटनोट दे के भी समझाए, लेकिन आप मान लीजिए नाटक या रेडियो नाटक या एकांकी में हम इसको फुटनोट कैसे देंगे, तो ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप जानते हैं कि अनुवाद एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति, दूसरी संस्कृति से तीसरी संस्कृति, तो अनुवादक को दो संस्कृति कल्चर परंपरा का जाना बहुत जरूरी है। जैसे एक सशक्त उदाहरण मैं आपको पेश करना चाहूँगा। ये मणिपुरी दो लाइनें हैं, दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो बड़ा भाई कह रहा है नया वो अदुम ना हाइबा उचित तो वही खींच रहेगा, बड़े भाई की लाइन है। और नेक्स्ट इसका जवाब आता है छोटा भाई हाय इबानी निकाओ। देखिए ये दो लाइन है, इसका हमने हिंदी में अनुवाद किया। बड़े भाई बदतमीज बड़े भाई को ऐसा बोलता है, छोटा भाई याद रखो हम दोनों जुड़े हैं। देखिए आपको हमने ट्रांसलेट कर दिया, आपको ये अर्थ मिला, लेकिन अब देखिए जो मणिपुरी में जिस व्यंजना संवेदना को प्रकट करना चाह रहे हैं वो इतना सीमित नहीं है। मणिपुरी में ये एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है या एक परंपरा है कि जब किसी घर में दो जुड़वा पैदा होता है तो बाद का जो जन्मा है वो बड़ा मानता है, जो बड़ा है वो छोटा मानता है। जो व्यक्ति जो ट्रांसलेटर इस संस्कृति को न जाने ये ट्रांसलेट कैसे हो पाएंगे। तो मणिपुरी में ये एक व्यंग है, एक व्यंजन है। जब दोनों झगड़ा करते हैं तो बड़ा ये सिद्ध करने के लिए कहता है कि मैं बड़ा हूं, तुम ऐसे जवाब लड़ाते हैं, और छोटा जब ये जानता है कि हम दोनों जुड़वा हैं तो हम बड़े हैं, तो ये दावा कर रहे हैं कि हम आपसे बड़े हैं। तो ये व्यंग जो है वो हिंदी में हम अनुवाद करते कैसे हम व्यंग कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम फुट नोट में नीचे अगर आप उपन्यास कर रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं तो भले ही हम नीचे इसका फुट नोट भी दे, लेकिन अगर ये नाटक या रेडियो नाटक पे हम इसको प्रस्तुत करेंगे तो हम कैसे करेंगे। इसका एक ही समाधान रहेगा, या तो इसको निकाल के फेंको या इसका एक प्रश्न अलग ये कर दीजिए। तो देखिए इसी तरह की काफ़ी कुछ हम देखने को मिल रहे हैं। और जाते जाते एक और मैं प्रश्न छेड़ना चाहूँगा। अभी मैं नीलोत्पल मृणाल युवा पुरस्कार मिले थे साहित्य अकादमी का, उनका बहुत सुंदर नोवेल है डार्क हॉर्स। आप समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, मैं इसका अभी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इसमें भी काफ़ी कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो मन होते होते हुए भी हम काफ़ी कुछ उसको छोड़ना पड़ रहा है। देखिए एक प्रश्न है, अच्छा आप ई बताइए वो गांव में पंचायत भवन के सामने सरकार चबूतरा काहे बनवा गई। ओहो हाँ, ई हुआ ना एक ठो कारण। अच्छा ये जो चिराग है ई हरदम जलते का है होते नहीं, हाय टूट गया। ई साला दिल्ली में रास्ता नहीं था क्या पुल बनाने का, अबे टेम्पुलवा टूट गया, कोनो बवाल नहीं हुआ। देखिए ये उन्होंने बहुत सुंदर डायलेक्ट बोलियां का प्रयोग किया है। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में काफ़ी सारे डायलेक्ट है, बोलियां हैं जो जगह जगह उसकी विशेषताएं प्रकट करते हैं। और जबकि हमारे मणिपुरी में क्या आपके असामी में भी शायद इसका ये होगा कि मणिपुरी में ऐसे डायलेक्ट्स बहुत कम हैं, ऐसी जबाने की लड़खड़ाहट या घुमार भाषा, तो इस तरह की बहुत सारे कम हैं। अगर ये हम मणिपुरी में ट्रांसलेट करते हैं तो पाठक को ये सोचेगा या तो ये मुसलमान, हमारे वहाँ के लोकल मुसलमान जो है वो इसकी बोलियाँ कुछ इस तरह ये टेलीपन होता है, तो या तो ये हो सकते हैं कि उन्होंने शायद ये जो वक्ता है या तो मुसलमान है, तो हम कैसे उनको अभिव्यक्त करें। तो इसी तरह की ट्रांसलेशन में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होते हैं कि जैसे डायलेक्ट आ जाता है या उपबोलियाँ आ जाता है, उसका भी काफ़ी कुछ सामना करना पड़ता है। और जैसे हंसी मजाक में जैसे पिताजी एक बार पिताजी ऑफिस से वापस आए तो बेटे से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें जू दिखा के आता हूँ। तो बच्चा उठ के बोलता है पापा हम किसके सीट में जू देखेंगे। तो देखिए ये इसकी दो डबल वर्ड मीनिंग वो मणिपुरी में नहीं है। जू अलग वर्ड है और इंग्लिश का जू तो हम पता ही। तो ये जो डायलॉग है वो हम मणिपुरी में लाना असंभव है। तो इसी तरह की काफ़ी कुछ हम देखने को मिल रहा है। बस सवाल यह है कि एक